1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. جب کولڈ وار میں امریکہ نے روس سے پہلے چاند پر اپنا پرچم لہرایا تو کئی دہائیوں تک چاند امریکن اجارہ داری کی ایک خاموش علامت بنا رہا۔ 1969 میں لگایا گیا امریکن فلیگ صرف ایک سائنسی اچیومنٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جیو پولیٹیکل میسج تھا کہ امریکی سامراج انسانیت کی تاریخ میں کسی بھی دوسری تہذیب سے کہیں زیادہ دور پہنچ چکا تھا۔ وہ اپولو 17 تھا، اسپیس ریس کا آخری مشن جس نے انسان کو چاند پر پہنچایا تھا، اور تقریباً 50 سال تک کسی نے بھی اس ڈومیننس کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن پھر 2010 کی دہائی کے آخری سالوں میں امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز، ملٹری پلانرز اور اسپیس اسٹریٹجسٹ نے ایک غیر معمولی تبدیلی کو نوٹس کرنا شروع کیا۔ چین بڑی خاموشی مگر بہت تیزی سے اسپیس ٹیکنالوجی میں پروگریس کر رہا تھا، مشن کے بعد مشن، لینڈنگ کے بعد لینڈنگ، سیمپل کے بعد سیمپل، اور یہاں بھی ہر کامیابی صرف ایک ٹیکنالوجیکل اچیومنٹ نہیں تھی بلکہ یہ بھی ایک اسٹریٹجک مائلسٹون تھا۔ تو یوں کئی دہائیوں بعد اب چاند پر واپس جانے کی ایک نئی ریس شروع ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اب ہی کیوں، اور اتنا زیادہ وقت کیوں لگا انسان کو واپس چاند پر پہنچنے میں؟ تو اس نئی اسپیس ریس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی اسپیس ریس کو سمجھنا ہوگا۔ دونوں کنٹریز اپنی ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ریس اصل میں ایک بہت بڑی جیوپولیٹیکل جنگ کا ایک حصہ تھا تاکہ خود کو دنیا کی سپر پاور ثابت کیا جا سکے۔ روس وہ پہلا ملک تھا جس نے ایک آبجیکٹ، ایک اینیمل اور ایک انسان کو آربٹ میں بھیجا تھا۔ لیکن 1969 میں امریکہ نے انسان کو چاند پر پہنچا کر یہ ریس جیت لی، اور 1972 تک 12 US ایسٹروناٹس مون پر جا چکے تھے۔ لیکن پھر یہ اپولو مشنز روک دیے گئے۔ اصل میں 1972 کے بعد امریکہ کے یہ مشنز رکنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ لونر ایکسپلوریشن پروگرام بہت مہنگا تھا، یہ بلینز آف ڈالر کا تھا، اور ایک دفعہ چاند پر قدم رکھ لینے اور اس ریس میں سوویت کو شکست دینے کے بعد فطری طور پر امریکہ کا فوکس دوسری ترجیحات کی طرف منتقل ہو گیا، جیسا کہ سیٹلائٹس اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن۔ لیکن اسی دوران چائنا بھی اپنا مون پروگرام بنا رہا تھا، اور 2006 میں چین کے چیف سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ لونر ایکسپلوریشن کسی ملک کی طاقت کی عکاسی ہے، اور پھر 2013 میں چائنا نے مون پر ایک ان مینڈ کرافٹ لینڈ کر دیا، جو 70s کے بعد کسی نے بھی کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ چائنا نے واضح کر دیا کہ وہ 60s کی امریکن کامیابی کو ایمولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور انسانوں کو مون پر لینڈ کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ چائنا یہ اکیلے کرے، اس لیے دونوں مقابلہ کر رہے ہیں، اور دونوں نے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ آنے والے سالوں میں انسانوں کو چاند پر واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ پہلے کی طرح چاند پر صرف جھنڈا گاڑنے کی ریس نہیں ہے، بلکہ اب کی بار یہ ریس چاند پر پرماننٹ بیسز بنانے، وہاں سے ڈیپ سپیس مشن کنٹرول کرنے اور چاند کے ہیلیم 3 جیسے انرجی ریسورسز حاصل کرنے کی ریس ہے۔ تو پہلے کی طرح اس بار بھی جو قوم سب سے پہلے چاند پر مستقل انفراسٹرکچر قائم کر لے گی، وہی چاند کے سب سے قیمتی علاقوں کو کنٹرول کر سکے گی، خاص طور پر لونر ساؤتھ پول، چاند کا وہ علاقہ جہاں منجمد پانی کی بے شمار مقدار موجود ہے، اور چاند پر پانی کا مطلب ہے سروائیول، لوکل سورس آف فیول، اور چاند پر مستقل موجودگی کی ضمانت، جبکہ مستقل موجودگی کا مطلب ہے کنٹرول۔ کولڈ وار کے بعد پہلی بار امریکہ کو احساس ہوا کہ کوئی اور اس ریس میں اس سے کہیں آگے نکل رہا ہے، اور اسی کے جواب میں ناسا نے تاریخ کے سب سے ایمبیشیس اسپیس پروگرام میں سے ایک لانچ کیا، جس کا نام ہے آرٹیمس، اور یہ ایک ملٹی سٹیج پروجیکٹ ہے۔ اپولو مشنز جو صرف چند روز ہی جاری رہے، اس کے برعکس آرٹیمس کا مقصد کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس پروگرام کا نام بھی یونانی میتھولوجی میں اپولو کی جڑواں بہن کے نام پر رکھا گیا ہے، اور یہ پروگرام ماضی کو دہرانے کے لیے نہیں بلکہ فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ پروگرام چاند پر مستقل امریکن موجودگی قائم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چاند کی اس نئی ریس میں سب سے اہم پوائنٹ لونر ساؤتھ پول ہے۔ یہ علاقہ ایک اہم دریافت کے بعد پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ دراصل چاند کی سطح پر ہر طرف کئی کلومیٹر بڑے اور گہرے گڑھے ہیں، اور ایسے ہی گڑھے چاند کے ساؤتھ پول پر بھی موجود ہیں۔
अब चूंकि चांद के साउथ पोल पर कभी भी सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ती, तो साउथ पोल के इन गढ़ों की अंदरूनी सतह अरबों सालों से अंधेरे में डूबी हुई है और इसे PSR यानी परमानेंटली शैडोड रीजन कहा जाता है। साउथ पोल के अंदर इन अंधेरे गढ़ों में 200 से 250 डिग्री मनफी का दर्जा हरारत होता है, जिसे कोल्ड ट्रैप कहा जाता है, और इसी कोल्ड ट्रैप में मुंजमद पानी यानी आइस वाटर के सबूत मिले हैं। मुश्किल अंधेरे में छुपा हुआ बर्फ का खजाना, ऐसी बर्फ जिसे पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल में तब्दील किया जा सकता है। ऐसी बर्फ जो चांद को एक मुर्दा दुनिया से एक जिंदा आउटपोस्ट में तब्दील कर सकती है। और नासा समझ चुका था कि चीन भी इसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए नासा ने 2022 में आर्टेमिस 1 लॉन्च किया। इस मिशन में बगैर इंसान के एक स्पेस क्राफ्ट को चांद के मदार में भेजा गया और महफूज तरीके से जमीन पर वापस लाया गया। दूसरे मरहले में एस्ट्रोनॉट्स 50 साल से ज्यादा अरसे बाद पहली बार मून के गिर्द ऑर्बिट करेंगे और उसके बाद वाला मिशन इससे भी ज्यादा अहम चीज लेकर जाएगा। फाइनल फेज में इंसानी कदम एक बार फिर चांद की सरजमीन को छुएंगे और इसके लिए 2027 की डेडलाइन रखी गई है। लेकिन इस बार वो सिर्फ झंडा गाड़ कर वापस नहीं आएंगे, बल्कि वो चांद पर मुस्तकिल इंसानी बुनियादें तामीर करेंगे। कई दिहाइयों तक साइंसदान ये समझते रहे हैं कि चांद एक बेजान सहरा के अलावा कुछ भी नहीं, खुश्क, वीरान और इंसान की मुस्तकिल मौजूदगी के लिए बेकार। लेकिन बाद की दिहाइयों में जब साइंसदानों ने लूनर साउथ पोल का मुतालिया शुरू किया तो सब कुछ तब्दील हो गया। चांद के बाकी हिस्सों के बरअक्स साउथ पोल में ऐसे क्रिएटर्स यानी गढ़ों की मौजूदगी पाई गई जो अरबों साल से मुस्तकिल अंधेरे में मौजूद हैं। ये क्रिएटर्स कभी सूरज की रोशनी नहीं देखते। इनका दर्जा हरारत इतना कम है कि जो भी इनके अंदर जाता है हमेशा के लिए जम जाता है। एडवांस एक्सप्लोरेशन के दौरान इन्हीं अंधेरों में साइंसदानों ने एक ऐसी चीज दरियाफ्त की जिसने इंसानियत के स्पेस प्लान्स को हमेशा के लिए बदल दिया। साइंसदानों ने यहाँ पानी दरियाफ्त किया, माया पानी नहीं बल्कि बर्फ की सूरत में जमा हुआ पानी। चांद की सरफेस के चंद सेंटीमीटर नीचे छुपी हुई कदीम क्रेटर्स के अंदर कैद अरबों साल पुरानी बर्फ। ये दरियाफ्त एक गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि पानी सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही जरूरी नहीं बल्कि ये स्पेस में मुस्तकिल मौजूदगी की भी जमानत है। पानी का सादा सा मतलब है कि एस्ट्रोनॉट्स को बार बार जमीन से सप्लाई की जरूरत नहीं रहेगी। पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जा सकता है। इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है और इससे हासिल होने वाली ऑक्सीजन सांस लेने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जबकि हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल बन सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि स्पेस क्राफ्ट बराह रास्त चांद पर ही रिफ्यूल हो सकते हैं और चांद डीप स्पेस मिशंस के लिए एक लॉन्च स्टेशन बन सकता है। तो यूं इंसानी तारीख में पहली बार चांद सिर्फ एक मंजिल नहीं रहा बल्कि ये डीप स्पेस का एक गेटवे बन चुका है। इससे भी अहम बात यह है कि इस इलाके के कुछ पहाड़ी मकामात तकरीबन पूरा साल ही सूरज की रोशनी हासिल करते रहते हैं और साइंसदान इन्हें पीक्स ऑफ इटर्नल लाइट कहते हैं। ये मकामात भी बेहद कीमती हैं क्योंकि ये मुसलसल सोलर एनर्जी फराहम कर सकते हैं, जिससे मुस्तकबिल की लूनर बेसिस किसी भी रुकावट के बगैर मुसलसल पावर जनरेट कर सकती हैं। तो यूं अंधेरे में मौजूद बर्फ और रोशनी में मौजूद एनर्जी, ये इम्तिजाज लूनर साउथ पोल को चांद का सबसे स्ट्रेटेजिक मुकाम बना देता है और दोनों सुपर पावर्स ही इस हकीकत को जानती हैं। चीन पहले ही इस इलाके में रोबोटिक रिसर्च स्टेशन बनाने का ऐलान कर चुका है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने आर्टेमिस मिशंस के जरिए साउथ पोल को अपना प्राइमरी लैंडिंग टारगेट बना चुका है। तो अब जो भी कौम वहां सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करेगी वो सिर्फ अलामती फतह हासिल नहीं करेगी बल्कि वो जमीन के बाहर मौजूद वाहिद काबिल इस्तेमाल पानी के जखीरे पर कंट्रोल हासिल करेगी। तो यूं साउथ पोल पर कंट्रोल का मतलब है रिफ्यूलिंग स्टेशंस पर कंट्रोल, और रिफ्यूलिंग स्टेशंस पर कंट्रोल का मतलब है मुस्तकबिल के स्पेस मिशंस पर कंट्रोल, जबकि मुस्तकबिल के स्पेस मिशंस पर कंट्रोल का मतलब है उस स्पेस इकोनॉमी पर कंट्रोल जो अगली सदी की सुपर पावर का फैसला करेगी। इसीलिए चांद अब सिर्फ एक साइंसी मकसद नहीं रहा बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक टेरिटरी बन चुका है और इंसानी तारीख में पहली बार मेजर पावर्स सिर्फ चांद पर जाने की रेस नहीं लगा रही बल्कि वो उसके सबसे कीमती इलाके पर कब्जा करने की रेस लगा रही हैं। अब आते हैं अपने अगले प्राइमरी क्वेश्चन पर, यानी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पानी, ऑक्सीजन और फ्यूल कैसे पैदा करेंगे। चांद पर जिंदा रहना सिर्फ लैंड करने और बाहर कदम रखने जितना आसान नहीं है। चांद पर हवा नहीं है, हिफाजत के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई माया पानी नहीं है, यानी वहाँ इंसानों को जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो या तो ज़मीन से लाना होगा या फिर वहीं चांद पर पैदा करना होगा। और ज़मीन से सप्लाईज लाना इतना महंगा है कि ये ऑप्शन सस्टेनेबल ही नहीं है। तो इसका सादा सा मतलब यह है कि ज़मीन से बाहर एक मुस्तकिल लूनर बेस मुसलसल ज़मीन पर इन्हिसार नहीं कर सकता
बल्कि उसे चांद के अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए खुद जिंदा रहना सीखना होगा। यहीं पर मुस्तकबिल की सबसे अहम टेक्नोलॉजीज में से एक सामने आती है। साइंसदान इसे इंस्टिंक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं, यानी जमीन से वसाइल ले जाने की बजाय एस्ट्रोनॉट्स उन्हें डायरेक्ट चांद पर ही निकालेंगे और प्रोसेस करेंगे। तो अब तक की स्टडीज के मुताबिक चांद का सबसे पहला और सबसे अहम रिसोर्स मुंजमद पानी है, जिसे हासिल करने के लिए लूनर साउथ पोल पर रोबोटिक ड्रिल्स चांद की सतह को तोड़ेंगी और ज़मीन के नीचे छुपी हुई बर्फ़ को निकालेंगी। फिर इस बर्फ़ को प्रोसेसिंग यूनिट्स में मुंतकिल किया जाएगा, जहां इसे गर्म करके साफ किया जाएगा और माया पानी में तब्दील किया जाएगा। ये पानी फौरन इंसानी सर्वाइवल को सपोर्ट कर सकता है। एस्ट्रोनॉट्स के पीने के लिए यही पानी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा उनकी सफाई और रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए भी यही पानी इस्तेमाल होगा। लेकिन पानी की असल ताकत सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि पानी की असल ताकत उसमें है कि ये और क्या कुछ बन सकता है। फिजिक्स का एक बहुत बेसिक सा अमल है जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इस अमल से पानी को इसके दो बुनियादी अनासिर में तकसीम किया जा सकता है, यानी H2O को तकसीम करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हासिल की जा सकती है। ऑक्सीजन को महफूज करके लूनर हैबिटेंट्स और स्पेस सूट्स के अंदर सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि हाइड्रोजन इंसानियत के सबसे ताकतवर रॉकेट फ्यूल्स में से एक बन जाता है, जिसका मतलब है कि चांद से लॉन्च होने वाले रॉकेट्स को जमीन से फ्यूल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो बराह रास्त चांद की सतह पर ही रीफ्यूल कर सकेंगे। और ये इक्वेशन यहाँ सब कुछ तब्दील कर देती है, क्योंकि चांद की ग्रेविटी जमीन के मुकाबले में 6 गुना कमजोर है, जिसका मतलब है कि चांद से लॉन्च होने वाले रॉकेट को जमीन के मुकाबले 6 गुना कम एनर्जी दरकार होगी। यानी चांद पर रीफ्यूल होने वाला स्पेसक्राफ्ट ज्यादा दूर, ज्यादा तेजी से और कम खर्च में सफर कर सकता है, जिसके बाद चांद मौसर तौर पर मार्स और उससे आगे जाने वाले मिशंस के लिए एक फ्यूल स्टेशन बन सकता है। इसके अलावा लूनर बेस को ऑपरेशनल रखने के लिए दरकार एनर्जी सोलर पावर से हासिल की जाएगी। पीक्स ऑफ इटर्नल लाइट पर नस्ब बड़े बड़े सोलर पैनल्स मुसलसल सूरज की रोशनी को जज्ब करेंगे और लूनर बेस को मुसलसल बिजली फराहम करेंगे। लूनर बेस के अंदर एस्ट्रोनॉट्स सील्ड हैबिटेंट्स में रहेंगे, जो उन्हें रेडिएशन, शदीद दर्जा हरारत और माइक्रोम्यूट्राइड से महफूज रखेंगे। ये बेसिस एक एलियन और बेजान दुनिया के दरमियान खुद कफील जजीरों की तरह काम करेंगी और इंसानी तारीख में पहली बार इंसान जमीन से बाहर किसी नई दुनिया का सिर्फ विजिटर नहीं, बल्कि वो वहां जिंदा रहना सीखेंगे। और एक बार जब इंसान जमीन पर इन्हिसार किए बगैर चांद पर जिंदा रहने लगेंगे, तो चांद आसमान की कोई दूर दराज की चीज नहीं रहेगा, बल्कि वो जमीन के बाहर इंसानों की पहली कॉलोनी बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी वजह है जिसके लिए सुपर पावर्स ये रेस लगा रही हैं, और वो है हीलियम 3, मिलिट्री बर्थरी और मुस्तकबिल का कंट्रोल। वैसे तो इन अरबों डॉलर्स के अखराजात और इस मून रेस के लिए ज़ाहरी तौर पर हर कौम एक ही वजाहत पेश करती है। वो कहते हैं कि लूनर मिशन साइंस के लिए हैं, दरियाफ्त के लिए हैं और इंसानियत की तरक्की के लिए हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है, और इस गहराई में ऐसे वसाइल छुपे हैं जो आलमी ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चांद के इन वसाइल में सबसे ज्यादा कीमती हीलियम 3 है। हीलियम 3 जमीन पर हाइड्रोजन का एक इंतहाई नायाब लेकिन बहुत ताकतवर आइसोटोप है। दरअसल जमीन का एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड इसे बड़ी मिकदार में यहाँ जमा होने ही नहीं देते। लेकिन चांद के पास ऐसा कोई हिफाजती मैकेनिज्म नहीं है। अरबों साल से चांद बराह रास्त सोलर विंड्स का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से हीलियम 3 आहिस्ता आहिस्ता चांद की सतह पर जमा होता रहा है। हाइड्रोजन का ये आइसोटोप गैर मामूली ताकत रखता है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, एक ऐसा एनर्जी सोर्स जिसके पीछे साइंसदान दहाइयों से काम करते आ रहे हैं। चूंकि फ्यूजन रिएक्शन बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करता है और रवायती न्यूक्लियर पावर के बरअक्स ये खतरनाक रेडियो एक्टिव वेस्ट भी पैदा नहीं करता, तो ये महफूज तवानाई का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। अगर हीलियम 3 से चलने वाले फ्यूजन रिएक्टर्स कामयाब हो जाते हैं, तो थोड़ी सी मून डस्ट भी बेपनाह साफ एनर्जी पैदा कर सकती है, और जो कौमें हीलियम 3 पर कंट्रोल हासिल करेंगी वो ग्लोबल एनर्जी के मुस्तकबिल को कंट्रोल करेंगी। लेकिन ये वसाइल इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। इसके अलावा चांद एक और भी ज्यादा ताकतवर स्ट्रेटेजिक फायदा फराहम कर सकता है, और वो है इसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन। चांद से सैटेलाइट ज्यादा मौसर तरीके से लॉन्च किए जा सकते हैं। डीप स्पेस मिशंस कम फ्यूल के साथ लॉन्च हो सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मुसलसल सिग्नल्स फराहम कर सकते हैं। और मिलिट्री नुक्ता नज़र से चांद पर कंट्रोल का मतलब है स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि आज की दुनिया में स्पेस अब सिर्फ साइंसी मैदान नहीं रहा है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मैदान बन चुका है। सैटेलाइट्स ज़मीन पर नेविगेशन, कम्युनिकेशन, मालियाती निज़ाम और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं।
जो कौम स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर डोमिनेंस हासिल करती है वो आलमी निज़ाम पर बेपनाह इन्फ्लुएंस हासिल कर सकती है, और चांद पर मुस्तकिल मौजूदगी इस डोमिनेंस को कई गुना मजबूत बना देती है। इसीलिए चीन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही अपनी रफ्तार तेज कर रहे हैं। अब हर मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि पोजीशनिंग है, हर लैंडिंग सिर्फ अलामती नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि जो कौम सबसे पहले चांद पर मुस्तकिल और खुद कफील बेस कायम करेगी वो कई दिहाइयों की बरतरी हासिल कर लेगी। एनर्जी में बरतरी, टेक्नोलॉजी में बरतरी, मिलिट्री और माशी ताकत में बरतरी। वो लम्हा जो इंसानियत को हमेशा के लिए बदल देगा, जब इंसान दोबारा चांद पर वापस जाएगा। अब वो वक्त दूर नहीं है जब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार जमीन इंसानों का वाहिद घर नहीं रहेगी। नासा और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने ही ऐसे प्लान्स अनाउंस किए हैं जो इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। उनके मिशंस वो टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल फाउंडेशन बना रहे हैं जो ज़मीन से बाहर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। हर लॉन्च होने वाला स्पेसक्राफ्ट, हर मुकम्मल होने वाला रोबोटिक मिशन और ट्रेन होने वाला हर एस्ट्रोनॉट इंसानियत को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने के मजीद करीब ले जा रहा है। तारीख में देखा जाए तो ह्यूमन हिस्ट्री की हर बड़ी छलांग एक नई फ्रंटियर क्रॉस करने से ही शुरू होती है। जब इंसानों ने समंदर क्रॉस किए तो उन्होंने बरे आज़मों को कनेक्ट किया। जब इंसानों ने फ्लाइट में महारत हासिल की तो उन्होंने पूरी दुनिया को ही कनेक्ट कर लिया। और अब जब इंसान ज़मीन से बाहर मुस्तकिल तौर पर कदम रखेगा तो वो सिविलाइजेशन को कॉस्मोस से कनेक्ट कर देगा। चांद एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाएगा, एक ऐसी जगह जहां इंसान डीप स्पेस में जिंदा रहना सीखेगा। वहां सीखे गए लेसन्स मार्स मिशंस को मुमकिन बनाएंगे। वहां डेवलप होने वाली टेक्नोलॉजीज ज़मीन पर ज़िंदगी को तब्दील कर देंगी। नए एनर्जी सिस्टम्स, नई इंडस्ट्रीज और नए साइंसी ब्रेक थ्रूज। आज पैदा होने वाले बच्चे एक ऐसी दुनिया में परवान चढ़ सकते हैं जहां चांद तक सफर करना कोई मोजज़ा नहीं बल्कि एक नॉर्मल मिशन बन सकता है, जहां एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ विजिटर्स नहीं बल्कि रेजिडेंट्स होंगे, और जहां इंसानियत एक सिंगल प्लैनेट तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि कई दुनियाओं पर फैल चुकी होगी। आज रात जब आप आसमान की तरफ देखेंगे, चांद बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा जैसा हमेशा से नजर आता है, खामोश, दूर और नाकाबिले रसाई। लेकिन आने वाले चंद सालों में ये सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री का हर अजीम कदम कभी नामुमकिन लगता था, कम से कम तब तक जब तक वो हो नहीं गया। आज इस वक्त इस लम्हे ज़मीन पर कहीं रॉकेट्स तैयार किए जा रहे हैं, कहीं एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं मशीन्स बनाई जा रही हैं, और बहुत जल्द इंसानी कदमों के निशानात एक बार फिर किसी और दुनिया पर होंगे। लेकिन इस बार विजिटर के तौर पर नहीं बल्कि एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत के तौर पर। अगली बार जब इंसान चांद पर चलेगा तो ये किसी मिशन का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत होगी, एक ऐसा अहद जिसमें इंसान ज़मीन के किनारों से बाहर निकलकर आसमान को फतह कर रहा होगा।